So good morning, students. Last time we have studied the various kinds of diseases, different kinds of disorder, various types of diseases. Like we have started with the renal caliculi, that is also known as kidney stone. You can see the pictures of kidney stone, guys. Renal disorders like uremia, nephritis, and what is the streptococcal glomerulonephritis, right? These are all the things we have studied earlier. And today's topic is artificial kidney. Artificial kidney, it is also known as hemodialysis. So as we have studied, guys, there are different disorders where kidney stops working. There are different disorder, guys, where kidney stops working. Kidney अपना काम करना बंद कर देती है, guys. Just take an example. So what will happen, guys, if your kidney is not working properly? What will happen if your kidney is not working properly? There are the waste matter that will accumulate slowly to your blood, and from blood it will slowly accumulate to the organs. And when it will accumulate to our organs, when will it accumulate to your blood, so what will happen? It will disturb the body metabolism. So what it is going to disturb? It is going to disturb the body metabolism, right? It is going to disturb what? It is going to disturb the body metabolism, right, guys? So now body metabolism, it is going to disturb. When the body metabolism is disturbed, your organs, if your kidney is not working, your other organs, like as I said in earlier class, आपका जो heart है, if your kidney is not working properly, आपका जो heart है, guys, that heart is also going to affect. Clear बच्चों? Your heart is also going to affect. Clear बच्चों? So ऐसे ही बाकी के जो organs है आपके, वो भी धीरे 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 they are also going to like affect. Clear? So hemodialysis, so there is an alternative method. So हमने पढ़ा है कि जब भी यूरिन फॉर्मेशन होता है, गाइस, जब भी यूरिन फॉर्मेशन होता है, so what is happening? जब भी यूरिन फॉर्मेशन होता है, guys, there are some processes that happens. Very first thing that happen is ultrafiltration. दूसरी प्रोसेस होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा प्रोसेस जो होता है that is the tubular secretion. So ये तीनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली वर्क करती है. ये तीनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली वर्क करती है बच्चों, तभी तो जाके यूरिन फॉर्मेशन होता है. क्लियर गाइस? बट क्या करें ऐसे पेशेंट्स जिनमें किडनी बनी नहीं, किडनी वर्क करना स्टॉप कर दिया है, तो उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव, गाइस? सो हम क्या करते हैं बच्चों, उनके ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल मशीन बनाई है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल डायलिसिस और आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, गाइस. ब्लड का क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन. अभी बच्चों ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है मतलब पूरी की पूरी एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रही है क्या? पूरा का पूरा एक्सक्रीशन प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं गाइस, होल एक्सक्रीशन प्रोसेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि होल एक्सक्रीशन प्रोसेस होने के लिए दैट इज फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दैट इज फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज फॉर ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए किसकी जरूरत होती है? इसके लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है. आई विल टीच यू. सो इसके लिए हार्मोन्स होते हैं. यू नो दैट आपकी किडनी जो है, किडनी इटसेल्फ, किडनी सेल्स जो है, किडनी सेल्स में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, गाइस. और किडनी ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है इरेथ्रोपोएटिन. व्हाट इज दिस इरेथ्रोपोएटिन, गाइस? Erythropoietin is a hormone which help in the formation of blood. So जब erythropoietin ही secrete नहीं होगा, तो उतना efficiently उस किडनी पेशेंट में या the person who is suffering from the renal failure, उसमें blood बनेगा क्या guys? नहीं बनेगा. उतना efficient blood formation नहीं होगा. Clear? So वो person वैसे भी anemic रहेगा. So अभी डायलिसिस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? डायलिसिस हो रहा है मतलब सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है. आउट ऑफ दिस 3 प्रोसेसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, उसमें से सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही प्रोसेस जो है वो डायलिसिस में होता है. क्लियर? सो डोंट फॉरगेट गाइस. सो जो भी बाहर निकलेगा दैट्स गोइंग टू बी अ फिल्ट्रेट.
तो बच्चों पर्सन वैसे भी एनीमिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लास में भी पढ़ाया है, फिल्ट्रेट जो रहता है, फिल्ट्रेट में ढेर सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज होता है, बहुत सारा वाटर होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल साल्ट्स होते हैं, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, इजंट इट, क्लोराइड आयंस, ये सभी उस पर्सन के बॉडी से बाहर निकलेंगे। वाइटल प्रोटीन्स ऑल्सो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी पर्सन की बाहर जाएंगी। तो वैसे भी वो इफिशिएंट, बट हाँ डायलिसिस पे है किसी कोई पर्सन, तो मतलब हम उसको सर्वाइवल रेट बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे गाइस? वी आर इंक्रीजिंग द सर्वाइवल रेट। अभी देखो इसका फिनोमिनन में पढ़ाऊंगी, फिनोमिनन पढ़ाने से पहले गाइस ध्यान दिए, यहाँ से शुरू करते हैं गाइस। दिस इज अ हैंड ऑफ द पर्सन, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी अ रेडियल आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी है बच्चों, दिस इज द रेडियल आर्टरी गाइस, और रेडियल आर्टरी से ये ब्लड का फ्लो हो रहा है, क्लियर। और यहाँ पे हमने एक ट्यूब लगाई है, और दूसरा ट्यूब जो है हमने इंजेक्ट किया है, ये इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, मतलब वी हैव इंजेक्टेड टू वेन। वेन में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वेस्ट मटेरियल रहता है, तो ये इंजेक्ट किया है हमने इंट्रावेनस। यहाँ पे भी आपका किडनी जो है, किडनी में हमने यहाँ से, किडनी नहीं एक्चुअली, यहाँ पे आपका किडनी तो यहाँ पे होता है, तो वी हैव लाइक यहाँ इस रीजन में जहाँ पे ब्लैडर होता है, यहाँ पे भी वेन्स होती है, तो यहाँ पे हमने इंट्रावेनस इंजेक्ट कर दिया इसे। जब और देखो ये इंट्रावेनस इंजेक्ट करने के बाद में यहाँ अप्लाई किया पंप, बिकॉज हमें ब्लड को फिल्टर करना है, तो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। याद करो माल्फिगियन बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है, क्लियर गाइस? माल्फिगियन बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है। अब यहाँ पे कहाँ से आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? सो वी हैव टू अप्लाई द पंप, पंप से हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पंप की अरेंजमेंट की है। और गाइस यहाँ पे है डायलिसिस सॉल्यूशन, ये जो ट्यूब निकल रही है बच्चों यहाँ से, ये जो ट्यूब है, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ ट्यूब, और जिसे हमने एक सॉल्यूशन में एम्बेडेड करके रखा है, सो दैट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो। और अभी ये डायलिसिस सॉल्यूशन है, इसमें बच्चों ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन की जाती है। ऑस्मो रेगुलरिटी का मतलब है मतलब the concentration of dialysis solution and the concentration of a filtrate जो अभी इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, ये मेंटेन किया जाता है। तभी तो जाके ये ट्यूब में से, ये ट्यूब जो है ये सेमी परमेएबल रहती है गाइस। इस ट्यूब में से देखो ये है ब्लड साइड इन द सेंस दिस इज द वन, और डायलिसिस साइड। सो इसी कारण बच्चों व्हाट विल हैपन, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। सो ब्लड के कुछ मॉलिक्यूल वाया दिस मेम्ब्रेन दे कम टू द डायलिसिस सॉल्यूशन, और इस डायलिसिस सॉल्यूशन जो यहाँ पे निकल रहा है, डायलिसिस सॉल्यूशन में वेस्ट मटेरियल आ रहा है। सो ये जो यहाँ पे ट्यूब दिख रही है और डायलिसिस सॉल्यूशन, इसमें सेमी परमेएबल रहती है। ये जो ट्यूब होती है दिस इज सेमी परमेएबल, और जब ये डायलिसिस सॉल्यूशन में आती है ऑस्मो रेगुलेटरी मेंटेन होती है, और वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज होता है बाहर की तरफ, दैट इज टू डायलिसिस सॉल्यूशन में डिफ्यूज होता है। सो कैसे डिफ्यूज होगा? इट इज गोइंग टू डिफ्यूज बाय द फिनोमिनन। कौन सा फिनोमिनन गाइस? डिफ्यूजन से, दैट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा ब्लड साइड जो है, यहाँ पे ब्लड है, सोच के चल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ब्लड है, सो ब्लड में वेस्ट मटेरियल ज्यादा रहेगा, और ये जो डायलाइसिंग सॉल्यूशन है गाइस, इसमें तो वेस्ट मटेरियल है नहीं, हमने इसे पोर किया है। सो फ्रॉम बच्चों हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है बच्चों? हायर कॉन्सेंट्रेशन है इस ट्यूब में। किसका हायर कॉन्सेंट्रेशन है? वेस्ट मटेरियल का। और इस ट्यूब में क्या है बच्चों? इसमें है ब्लड। क्लियर? सो ये ब्लड में से वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस सॉल्यूशन में चलाएगा, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल इस डायलिसिस सॉल्यूशन में चलाएगा। क्लियर बच्चों? जब ये वेस्ट मटेरियल डायलिसिस सॉल्यूशन में आएगा गाइस, by the कौन सा phenomenon? So I said by the process of diffusion. Clear? Diffusion का मतलब होता है any solute or anything when travel from higher concentration to lower concentration, that process is known as diffusion. Clear?
इट शुड बी क्लियर गाइस, ये मैं आगे भी पूछने वाली हूँ. देयर आर सो मेनी यूनिट्स जहाँ पे आपका ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए. क्लियर. एंड द सेकंड वन इज दूसरा प्रोसेस होता है गाइस ऑस्मोसिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस? When anything travels from lower concentration to higher concentration, anything when travels from low concentration to higher concentration, we are going to call it as osmosis. Clear? Now देखो इस डायलिसिंग सॉल्यूशन जो है बच्चों, इसमें से हमने वेस्ट मटेरियल को निकाल लिया है. और ये डायलिसिस जहाँ पे हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है. तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर बात है और कंटिन्यूअसली यहाँ से देखो ये जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और ये कंटिन्यूअसली इस पाइपलाइन से जा रहा है और यहाँ से कंटिन्यूअसली फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन कंटिन्यूअसली प्रोवाइड होता है. यू कैन चेक इट आउट इन मशीन. और ये है कॉम्प्रेस्ड एयर एंड CO2. ये कंप्रेसर चेंबर है. तो लाइक दैट इट हैपेंस. आगे चलेंगे बच्चों. Blood drain from convenient artery is pumped into dialysing unit after adding an anticoagulant like heparin. अभी देखो ब्लड का कोएगुलेशन होता है. यू नो दैट ब्लड व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, जैसे कि हमें इंजरी होती है गाइस, जैसे हमें इंजरी होती है एक 2 to 8 मिनट्स डिपेंड्स 2 to 8 मिनट तक के कंटिन्यूअसली उसमें से ब्लड फ्लो होता है और कुछ देर के बाद में आप कुछ ना करो तो भी अपने आप से ब्लड वेसल्स में जो ब्लड होता है वो कोएगुलेट होता है. कोएगुलेट का मीनिंग होता है गाइस उसकी गठान बन जाती है, उसका एक छोटा सा नॉट बन जाता है और आपका जो ब्लड वेसल है, जो कटा हुआ ब्लड वेसल्स रहता है जिसमें से कंटिन्यूअस ब्लड निकलते रहता है गाइस, वो कटा हुआ ब्लड वेसल जो है बच्चों वो अपने आप से ब्लॉक हो जाता है क्योंकि वहां पे ब्लड का छोटा सा क्लॉट बन जाता है. व्हेन द ब्लड इज क्लॉट, ब्लड का क्लॉट होता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर और व्हेन इट कम्स आउटसाइड आवर बॉडी, तो ब्लड कोएगुलेट होता है बच्चों. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन. पर बच्चों इस पूरे प्रोसेस में ब्लड कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहा है आउट ऑफ द बॉडी, तो उसमें कोएगुलेशन नहीं होने देना है. सो एक हमारे खुद के बॉडी में भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमेशा ब्लड कोएगुलेशन मतलब ब्लड का क्लॉट बनने जो बनता है उसे अवॉइड करता है. सो ब्लड कोएगुलेंट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउस blood to be liquid. They don't allow the blood to be in a solid form, that is to form the clot. Clear? So ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जो एंटी कोएगुलेंट्स करके वर्कआउट करते हैं हमारे बॉडी में, जिसका नाम है हिपैरिन. सो इन पूरे प्रोसेस में वी यूज द हिपैरिन. और एक सीक्रेट बात बताना चाहती हूँ, जब भी सर्जरी की जाती है बच्चों, है ना, सर्जरी जब भी की जाती है सो दैट टाइम हिपैरिन्स का यूज किया जाता है. देखो जब भी सर्जरी होती है लाइक ओपन हार्ट सर्जरी है, सो ब्लड वेसल्स को कट किया जाता है ड्यूरिंग दैट और कंटिन्यूअसली उस पर्सन को फ्रॉम वन साइड ब्लड प्रोवाइड किया जाता है. तो ये पूरी प्रोसेस में उस पर्सन के बॉडी में ब्लड के क्लॉट्स बनने लगे तो व्हाट विल हैपन, वो सर्जरी सक्सेसफुल होगी क्या बच्चों? नहीं. So to avoid that, during any surgery बच्चों हेपारिन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं. पेशेंट को किसके इंजेक्शन? मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, मेक दिस पॉइंट क्लियर. सो उसमें हिपैरिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं. अच्छा, वन स्टोरी अबाउट द हिपैरिन गाइस. तो आर एशियंट मेडिकल साइंस, इट्स द आयुर्वेदा. सो आयुर्वेदा स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिया गाइस. ठीक है. So Ayurveda में there are different like Vaidyas are the doctors that type, isn't it? So one of the very famous Vaidya जिसे हम अभी सर्जन कह सकते हैं, जो उस जमाने में सर्जरी करता था, उसका नाम है बच्चों सुश्रुत. सुश्रुत आयुर्वेदा का सर्जन माना जाता है. सुश्रुत के डिफरेंट बुक्स है. जो लोग BA MS करते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक साइंस, उनके स्टडीज के लिए होता है. सो व्हाट इज सुश्रुत यूज्ड टू डू?
तो सुश्रुत उस जमाने में जब कोई भी टूल्स नहीं थे, उस जमाने में he used to do the surgeries. So जब भी सर्जरीज होती थी he used to cut the arteries. सर्जरी बिना आर्टरीज वेन्स को कट किए तो नहीं होगी, या आपके स्किन को जब तक कट नहीं करेंगे तब तक ये सर्जरी होगी गाइस, नहीं होगी. सो जब भी सर्जरीज होती थी बच्चों, तो उस जमाने में लीचेस को छोड़ा जाता था. यू नो द बच्चों, लीचेस स्पा में यूज होता है, जहाँ पे आपको पैर रखना होता है और आपको हल्का सा चींटियां काटते वैसे चुभता है बच्चों. लीच हमेशा हमारे ब्लड को सक करता है, और जब वो ब्लड सक करता है हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है. तो जनरली ये स्पाज में यूज होता है जिससे टॉक्सिन रिमूव करने के लिए. तो गाइस लीचेस हमेशा हिपैरिन सीक्रेट करता है. किसे सीक्रेट करता है लीचेस? हिपैरिन को. तो उस जमाने में द सुश्रुत जब भी सर्जरी करता था, वो पेशेंट का जो ऑपरेटिंग एरिया है वहां पे लीचेस को छोड़ा करता था, सो दैट लीचेस जब वहां पे ट्रेवल करे वो हिपैरिन को सीक्रेट करे. इससे उसकी सर्जरी बहुत अच्छी हो जाती. फिर कुछ सालों के बाद में क्या हुआ, लीचेस के जो जीन्स थे जो हिपैरिन बनाते थे, अभी हमने क्या किया, लीचेस को वो जीन जो है जो हिपैरिन बनाते हैं वो हमने प्लांट में ऐड कर दिए. Isn't it so interesting guys? Yes, we can do that, and that technology is known as genetic engineering, or we call it as biotechnology. Clear guys? You must have heard about. Now as I said कि अभी we can put that gene which used to synthesize the heparin into the plant, और अभी हमारे पास में प्लांट है जिसके सीड से हम हेपैरिन बना रहे हैं, और वो हम बहुत ज्यादा अमाउंट में एज इन मेडिसिन यूज कर रहे हैं. So guys, clear about the heparin. Don't forget this one, because 4 marks के लिए what is the anticoagulant among these various kinds of substance, ऐसे question आ सकता है for the NEET, those who are the medical aspirants. So guys, to avoid the clot, इसमें heparin का यूज किया जाता है डायलिसिस में. Clear? Good. Now guys, next thing, it is the hemodialysis, या जिसे मैं कहूंगी artificial kidney. Blood drained from the convenient artery is pumped into dialysing unit. After adding an anticoagulant like heparin, the unit contain a coiled cellophane tube. इसमें क्या होता है बच्चे? coiled cellophane tube surrounded by a fluid. उस fluid को मैंने कहा dialysing fluid, having the same composition as that of the plasma except the nitrogenous waste. इसका composition कैसा रहता है guys? इसका composition रहता है same. किसकी तरह रहता है? as that of the plasma. प्लाज्मा की ही तरह होता है, except the nitrogenous waste. इसमें कौन नहीं होता है guys? इसमें nitrogenous waste नहीं होता है. Clear? यहाँ तक है clear? Now next thing is, so फिर से बता रही हूँ, डायलिसिंग फ्लूइड में क्या है? डायलिसिंग फ्लूइड में एवरीथिंग इज देयर एक्सेप्ट द ब्लड. प्लाज्मा इसमें है, कंपोजिशन सेम प्लाज्मा की तरह, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट. क्लियर? द पोरस cellophane membrane of the tube allows the passage of molecules based on concentration gradient. जैसे मैंने कहा, एक तो डिफ्यूज्ड होगा, नहीं तो ऑस्मोसिस होगा. क्लियर? As the nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. इस तरह से nitrogenous waste जो कि dialysing fluid में absent है, वो धीरे धीरे substances को move करने लगते हैं और blood को clear करते हैं. The clear blood is pumped back to the body through the vein after adding a antiheparin. वो clear blood is pumped back to the body through a vein after adding a antiheparin. समझ में आया? So ये जो clear हुआ blood है उसे हम फिर से body में भेजते हैं. Clear बच्चों यहाँ तक के? Is it clear for you guys? So this is known as the artificial kidney. इसे हम कहेंगे बच्चों artificial kidney. We call it as artificial kidney.
So do you understand up to this, guys? Is it clear for you all? Okay. Okay. Now you just check it out. I'll teach you this thing in the next lecture. So now the next topic is counter current mechanism. It is the counter current mechanism, बच्चों. So what is there in counter current mechanism? क्या पढ़ने वाले counter current mechanism? Counter current mechanism में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ये देखो कैसे मैंने जैसे कहा था कि रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी में. सो कैसे वाटर मूव होता है, कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे देखो मैंने बताया सिलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे हो रहा है, व्हाट आर द वेरियस ऑस्मोरेगुलरिटी, हाउ इट हैपेंस, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के थैंक यू.